and it is following a straight line path. All right. अभी आगे भी बढ़ रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स और नीचे भी जा रहे हैं. That means it is an example of projectile motion. It is having horizontal component of velocity and vertical component of velocity as well. In triangle ABP is coming to be perpendicular, which is y, upon base, which is x. Similarly, in triangle, if this pilot drops this relief material somewhere here, so this material is going to fall in the ocean and these victims are left with nothing. That means y-axis is not required to define this motion. Only x-axis can suffice mainly. That means it is one-dimensional kind of motion because only one axis is required. क्योंकि प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में यानी कि एक्सेलरेशन सिर्फ डाउनवर्ड्स होगा और उसकी वैल्यू होगी g के बराबर. Wherein Arshad Nadeem has beaten Neeraj Chopra in javelin throw. But इसमें एक बहुत बड़ा कैच है जो कि हम एंड ऑफ द लेक्चर समझ चुके होंगे. मैक्सिमम रेंज वो आती है एट 45 डिग्रीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. और यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं, विद द हॉरिजॉन्टल दिस एंगल इज शोन टू बी बिटवीन 34 टू 36 डिग्री. तो ऐसा क्यों है कि जेवलिन थ्रोअर्स अपना फुल पोटेंशियल नहीं यूज कर रहे हैं. हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आई एम अक्षित बग्गा and I welcome you to the first lecture of projectile motion. Projectile motion is a classic real life example of motion in a plane or motion in two dimensions. So let us start our topic with today's goals. Our first goal is to understand the basics of one dimension, two dimensional and three dimensional motion. Then we will have a detailed understanding about projectile motion, including its time period, maximum height, range, equation of trajectory. All right. And then we'll be dealing with some of the problems and previous year questions based on the understanding. Before starting this topic, we must have some previous knowledge. We are considering that we already have read about motion in a straight line, wherein kinematic equations of motion were the most important element. We already have a knowledge about vectors, including resolution of vectors, which includes addition, subtraction, Cartesian form of vectors. Then we have position vector, velocity, acceleration. All of this we are assuming that you all have already learnt about. Then we already have learnt about differentiation and integration also. This we are assuming. So let us understand that by the end of this lecture, what all we will be able to relate in real life. हम क्या क्या चीजें अपनी रियल लाइफ में रिलेट कर पाएंगे और मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर पाएंगे. Some examples are the trajectory of a football kicked from ground. So this football is kicked by a footballer and it reaches to this point on the ground. How much distance does this ball cover? What maximum height this ball is going to reach up to? How much time this ball is going to take to come back to the ground? What is the equation of its trajectory so that we can find for any point x we can find any point y. Something like this we are going to discuss in this lecture. Another example of projectile motion is this aeroplane dropping relief material to the victims. See how important it is, how important projectile motion is for a pilot as well. If this pilot drops this relief material somewhere here, so this material is going to fall in the ocean and these victims are left with nothing. Similarly, if this box of relief material is going to be released here, it is again going to go in the ocean. This is an island and these victims need it very much. तो इन चीजों को भी हमें डील करना होगा, है ना. और हम ये देख रहे हैं कि किस किस इंसान को जीवन में प्रोजेक्टाइल मोशन की नॉलेज की जरूरत पड़ती है. सिमिलरली इन दिस सिचुएशन, एक पायलट जिसको एक बॉम्ब थ्रो करना है एक टेररिस्ट कैंप पर, से फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ these victims we have a terrorist site, for example. All right, say for example there are terrorists instead of these victims and we have to drop a bomb. So similar method will be applied and there will be an exact position or a set of positions in between which this bomb is to be thrown
Otherwise, this bomb is going to miss. If it is thrown somewhere here, then it is going to miss the target, and maybe then the terrorists will hit this aeroplane and this will be knocked down. So, this is also an example. Similarly, bow and arrow hitting the moving target. With the bow and arrow, if we are hitting a moving target, that is also utilizing the concept of projectile motion. Similarly, a skateboarder displays tricks on the skateboard. He also uses the projectile motion concept. Maybe he has not learnt about it as we are going to read, but yes, he knows that this is going to be his trajectory and this is where he is going to land on this skateboard. Similar examples, we are going to read about projectile on an inclined plane as well, wherein the ball kicked on this inclined plane will have a different time period, different range, and different height. This one. All right. Similarly, the trajectory of a basketball, this is also going to be understood. And one very important and recent incident wherein Arshad Nadeem has beaten Neeraj Chopra in javelin throw by throwing a record throw of 92.97 meters. राइट, बट इसमें एक बहुत बड़ा कैच है जो कि हम एंड ऑफ द लेक्चर समझ चुके होंगे. सो प्लीज watch this lecture till end to know about the answer to this question, why this angle is between 34 to 36 degree. Ideal throw is considered to be between 34 to 36 degrees. मे बी आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो, इवन इफ यू हैव नॉट रेड, हम ये भी इस लेक्चर में कवर करेंगे कि जो हमारी आइडियल रेंज आती है, मैक्सिमम रेंज, वो आती है at an angle that comes at an angle 45 degrees from the horizontal. और यहां पर हमें क्या बता रहे हैं, विद द हॉरिजॉन्टल दिस एंगल इज शोन टू बी बिटवीन 34 टू 36 डिग्री. तो ऐसा क्यों है कि जेवलिन थ्रोअर्स अपना फुल पोटेंशियल नहीं यूज कर रहे हैं, बट देयर इज अ वेरी गुड रीजन बिहाइंड दिस. सो प्लीज वॉच द फुल लेक्चर टू नो अबाउट इट. Okay, so let us move to the next slide. Similarly, there can be many such real life events. For example, if you climb up a building and throw a stone from the top of the building, hope it doesn't hit someone's head, but yes, that is also a projectile motion. That stone is following a projectile path. Similarly, you throw a ball towards your friend, that ball is also following projectile path. So there can be n number of other examples as well. So don't confine yourself to the examples that I told you. There can be n number of any other situations also. So let's move ahead and strengthen our knowledge about one-dimensional, two-dimensional, and three-dimensional motion. Let us read out what is written here. For defining change in position, we might require one or more coordinate axes. हमें एक या एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ सकती है मोशन को डिफाइन करने के लिए या चेंज इन पोजीशन को डिफाइन करने के लिए. Based on this requirement, we divide motion into three categories. बेसिकली अगर हमें एक डायमेंशन यानी कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ रही है मोशन को डिफाइन करने के लिए, तो हम उसे वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे. दो कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी तो टू डायमेंशनल मोशन, और तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी तो थ्री डायमेंशनल मोशन नाम दिया जाएगा. Let us understand this with the help of a small example. Say for example, this is an ant. Right, and it is sitting at this point. It moves somewhat like this to another point. इन points को भी नाम दे देते हैं A point and B point. Now we want to define whether this is one dimensional, two dimensional or three dimensional motion. इसके लिए हमने क्या कहा कि हमें कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी उस पर डिपेंड करेगा कि ये मोशन वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल है या थ्री डायमेंशनल. सो फॉर एग्जांपल we want to define this motion. तो हमने अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस का ये सिस्टम बना लिया.
इस सिस्टम की एक खासियत है कि तीनों ही एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, x एंड y आर परपेंडिकुलर, y एंड z आर परपेंडिकुलर एंड z एंड x आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. This z is not represented outside the plane, but it is actually somewhat like this. You can represent it with the help of left hand. ठीक है, these two fingers represent x and y. This thumb coming out of the plane will represent z axis. अभी इस केस में हमें z axis की जरूरत नहीं है, so let us not consider z axis. Right? हमें क्या करना है? And this point of intersection of these three axes is called point of origin. 0,0,0 कहते हैं इस पॉइंट को, राइट. इस पॉइंट को बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ द मोशन पर अगर हम प्लेस करते हैं तो हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी सी इजी हो जाती हैं, राइट. तो हम ऐसा ही करते हैं, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस मोशन पर प्लेस करते हैं, somewhat like this. This is y axis and this is x axis. ठीक है, मैंने ओवरलैप नहीं किया है ताकि आपको दिखता रहे. मैं इसकी पोजीशंस डिफाइन करता हूं. देखिए, x एक्सिस पर इस पोजीशन को x1 कह दिया, इसको x2, इसको x3, इसको x4 और इसको x5. क्या y डायरेक्शन की मुझे जरूरत पड़ रही है इस मोशन को डिफाइन करने के लिए? ओनली x एक्सिस कैन सफाइस माय नीड टू डिफाइन दिस मोशन. सी, y डायरेक्शन में पोजीशंस अगर मैं लिखता हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं, x1, 0, यहां पर कोऑर्डिनेट x2, 0, दिस पोजीशन x3, 0, x4, 0 एंड x5, 0. तो y डायरेक्शन में मेरा कोऑर्डिनेट जो है वो सेम रह रहा है, यानी कि 0 के बराबर रह रहा है. दैट मींस y axis is not required to define this motion. Only x axis can suffice my need. That means it is one dimensional kind of motion because only one axis is required to define this motion, or we can say change in position. इसकी change in position को define करने के लिए मुझे सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत पड़ेगी. नाउ यू माइट से कि सर नहीं, ये एंड तो इस तरीके से नहीं, कुछ ऐसे मूव करेगी टुवर्ड्स दिस पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ठीक है, ये एक्चुअल पाथ है. सी, ये एंट मान लीजिए हमारी स्क्रीन पर पहले ऐसे चल रही थी कुछ इस तरीके से, अब ये एंट ऊपर की तरफ चल रही है, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में. ये मोशन कैसा होगा, वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल? थ्री तो नहीं है, वो तो हम सबको पता ही है, बट सेम काम देखिए फिर से करके देखते हैं. बट एक कैच है जो कि आप सबको पता होगा. इफ नॉट देन आई टेल यू. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो सिस्टम है, दिस इज मैन मेड, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि ये हमारी आंखों से सीधा ही दिखना चाहिए. इट कैन रोटेट ऑल्सो, बट द ओनली कंडीशन दैट मस्ट बी applying here is that these three axes must be perpendicular to each other. तो x, y और z तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, भले मैं इसको फिर रोटेट कर लूं, एंड आई कैन प्लेस इट अकॉर्डिंग टू माय नीड. ऑलराइट, सो we can again place our x, y and z coordinate system here. Somewhat like this. ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. अगेन आई रिक्वायर ओनली x पोजीशन टू डिफाइन माय मोशन. तो ये भी कैसा है, एक वन डायमेंशनल टाइप का मोशन है. दिस इज नॉट अ टू डायमेंशनल मोशन. ऑलराइट, मैं अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम को टिल्ट भी कर सकता हूं. अभी भी मुझे सिर्फ x एक्सिस से ही इसकी पोजीशन को डिफाइन करने का पूरा हक है. In the same format, if I want to make this ant move in two-dimensional motion, तो हमें क्या करना होगा? Say for example, this is again the same ant, and now it moves somewhat like this on our screen. क्या इस टाइप के पाथ को मैं एक एक्सिस से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? ट्राई करते हैं. किसी भी फॉर्म में रख लीजिए आप इसको, टिल्ट करके कैसे भी रख के देखिए, क्या ये x और y में किसी एक एक्सिस पर लाई कर रहा है ये मोशन? क्या एक एक्सिस से डिफाइन हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज सी एट एनी पॉइंट इट्स से इट्स पोजीशन हियर वाज x1, y1, दिस इज x1 and this is y1. At any other moment
कुछ टाइम के लिए मान लीजिए सेम भी हो सकती है, बट देन इफ इट इज चेंजिंग एट एनी पॉइंट, देखिए इसमें x और y दोनों ही पोजीशंस चेंज हुए, राइट। जब हमें दोनों एक्सिस की जरूरत पड़ेगी इस मोशन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, when we require both the axes to define this motion, that means it is a two-dimensional motion. तो ये होती है डेफिनेशन टू डायमेंशनल मोशन की। सिमिलरली अगर हमें तीनों एक्सिस की जरूरत पड़े, से फॉर एग्जांपल दिस आंट cannot fly, but say for example this was a house fly, तो ये हाउस फ्लाई अगर इस एनवायरनमेंट में कुछ इस तरीके से मूव करना शुरू कर दे, दैट मीन्स इट इज इन अ 3D स्पेस एंड वी रिक्वायर थ्री डायमेंशंस। आपने सुना भी होगा ये वर्ड 3D। 3D इज थ्री डायमेंशनल। ऑल राइट, सो लेट अस मूव अहेड टू द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। लेट अस सी व्हाट दिस प्रिंसिपल स्टेट्स। The motion in two dimensions can be understood as motion in two perpendicular axes. These two motions take place independent of each other. Say for example, I take this ball and I throw it somewhat like this and it follows a path which is requiring two coordinate axes for its measurement. That means it is a two dimensional motion. ठीक है, हमें दो डायमेंशन के मोशन की बात कर रहे हैं, यानी कि मोशन इन प्लेन। टू डायमेंशनल मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन प्लेन। ठीक है, देखिए ये ऊपर भी जा रही है बॉल और आगे भी बढ़ रही है, दैट मीन्स इट रिक्वायर्स वाई एक्सिस एज वेल एज एक्स एक्सिस फॉर मेजरिंग द मोशन। ठीक है, तो इसके पाथ को हम यहां पर कुछ ड्रॉ करते हैं। इन्होंने हमसे कहा से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पाथ ऑफ दिस बॉल, और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब मैंने कहा कि इस बॉल के मोशन को मैं दो परपेंडिकुलर एक्सिस में अंडरस्टैंड कर सकता हूं। से फॉर एग्जांपल इस बॉल की इस पॉइंट पर कुछ वेलोसिटी थी, इसका एक एक्स कंपोनेंट करेंगे और इसका एक वाई कंपोनेंट करेंगे, और ये दोनों ही कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से, यानी कि जो एक्स डायरेक्शन में इसका मोशन है वो इंडिपेंडेंट होगा वाई डायरेक्शन से। सिमिलरली से फॉर एग्जांपल इसके पास एक्स डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन है, मैं ए एक्स लिख देता हूं, अभी हम समझेंगे है या नहीं, और यहाँ पर ए वाई लिख देता हूं। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, आई एम जस्ट ड्रॉइंग दिस। इन द नेक्स्ट स्लाइड वील अंडरस्टैंड कि ये ए वाई ए एक्स की कोई वैल्यू होगी, जीरो होगा या जी होगा या माइनस जी होगा, वट एवर। सिमिलरली इसका जो एक्स पोजिशन है यहाँ पर और जो वाई पोजिशन है यहाँ पर, these two motions can be treated independent to each other. That means two-dimensional motion is broken into two one-dimensional motions along the x-axis and the y-axis respectively, and these two motions are independent to each other. All right. So this is called the physical independence of motion. The principle was stated by Galileo, right? And हम इन दोनों वन डायमेंशनल मोशंस पर काइनेमैटिक इक्वेशन ऑफ मोशन का उपयोग कर सकते हैं वेरी कंफर्टेबली। टुवर्ड्स द एक्स डायरेक्शन सेपरेटली we will treat the motion, and towards the y direction separately we will treat the motion. So let's move on to the next slide and understand it in a better manner. So let us move ahead to projectile motion. Before starting this, let us understand this case which we have already read in motion in straight line. एक फ्री फॉल का केस हमने पढ़ा था, देखिए this ball was dropped and it is following a straight line path, see. All right, or if I throw this ball from the ground at an angle of 90 degree, then also it will follow a straight line path. इसको हम पहले ड्रॉ करते हैं और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन को समझते हैं इसी की मदद से। Say for example this ball is thrown from the ground at an angle of 90 डिग्री। ठीक है, हमने कहा कि ये बॉल इस ग्राउंड के पॉइंट से 90 डिग्री एंगल पर थ्रो करी गई है।
राइट, और सेम पाथ पर ये रिटर्न करती है, ये भी हमें पता है, इट रिटर्न्स, इस पॉइंट पर पहुंचती है, ये ए पॉइंट है, ये भी ए ही पॉइंट है, इसको अलग अलग पाथ में हमने दिखाया है, तब भी ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस वी हैव ऑलरेडी रेड, because it is having its velocity component only in y direction, it is accelerating only in y direction, and it is having its displacement also in y direction. That means we need only y axis for the measurement of its change in position and its motion. तो ये एक वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल था। इसी मोशन में अगर मैं इसको एक y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के साथ एक x वेलोसिटी का कंपोनेंट भी दे दूं किसी तरीके से, देन इट विल बिकम अ मोशन इन टू डायमेंशनल एंड इट विल बी कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। हम डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट थ्रोन एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में तो ये मोशन भी हो रहा था, राइट, बस इसमें हमें एक काम करना है कि इसको एक एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी प्रोवाइड कर देना है। विद द हॉरिजॉन्टल हमने कहा कि हम अगर एक एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, से फॉर एग्जांपल वी प्रोजेक्ट दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट एट एन एंगल थीटा, सो इट विल हैव टू कंपोनेंट्स। एक इसके पास आ जाएगा Vx which will be the x component of its velocity and y components of its velocity। अब इन दोनों मोशंस को हम इंडिपेंडेंट टू ईच अदर ट्रीट कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट टू ईच अदर इसमें हम काइनेमैटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट हमने और लिखा है कि द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पर किसी भी मोशन के पॉइंट में, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पर इस पाथ में कहीं पर भी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही अप्लाई होना चाहिए, कोई भी और एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, तभी इसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देंगे। ऑल राइट, अच्छा अब इसकी एक्स और वाई कंपोनेंट वेलोसिटी के हो रहे हैं, तो इस पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, राइट, उसका भी कोई वाई कंपोनेंट है, हो सकता है एक्स कंपोनेंट भी हो। लेट अस सी इन द फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी तक हमने डेफिनेशन समझ लिया कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, ओनली इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड होना चाहिए और अदर देन 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड द सिचुएशंस आल्सो। What all situations can be there wherein we can call the motion a projectile motion? See, first will be ground to ground। ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब है कि जो पॉइंट ऑफ रिलीज होगा वो सेम हाइट पर होगा एज पॉइंट ऑफ लैंडिंग। दे बोथ लाई ऑन द सेम हाइट, दैट मीन्स इज द ग्राउंड टू ग्राउंड काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकेंड हम लोग डिफाइन कर देंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। एक हाइट पर खड़े होकर भी हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का पाथ हमें दिखाई देगा। ऑल राइट, वी गिव इनिशियली से फॉर एग्जांपल ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, we can give a velocity at an angle theta with the horizontal, we can give velocity at an angle theta dash with the horizontal in this direction also, say this is u1, this is u2, this is u3। ठीक है, इसको बस हमें थ्रो करना है विद एनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सिर्फ 90 डिग्री पे नहीं करना है, अदरवाइज इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन मोशन और एक ही डायमेंशन से ट्रीट हो जाएगा वो। अभी हमें दो डायमेंशन चाहिए, तो हमें कोई ना कोई एंगल पर उसे थ्रो कर देना है। और देखिए इस पर भी हर पॉइंट पर ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अप्लाइंग। ऑल राइट, तो ये तीन तरह के केस हो सकते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट के। देन थर्ड काइंड विल बी projectile
ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, जो हमें पढ़ना है। इंक्लाइंड प्लेन पर कैसा दिखता है प्रोजेक्टाइल? दिस वाज हॉरिजॉन्टल एंड this is an inclined plane which is having an angle of theta with the horizontal। और मैंने प्रोजेक्टाइल को एक बार यहां से एक एंगल पर थ्रो करा with this, say this angle is phi, with this inclined plane। दूसरे टाइम में मैं क्या कर सकता हूं, इस ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो कर सकता हूं with an angle phi dash from the inclined plane and it will again follow a projectile motion। इस केस में हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं इस प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होने वाली है। when it is released from this point at an angle theta, what will be the range, till what height this projectile will reach, which will be the h max। इसको पूरा पाथ फॉलो करने में क्या टाइम पीरियड का रिक्वायरमेंट है, कितना टाइम यूज हो रहा है, और किसी भी x पॉइंट ऑन द पाथ के लिए y कोऑर्डिनेट उसका क्या होने वाला है। कुछ इस तरीके की बातें हम सारे ही सिचुएशंस में करने वाले हैं। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर ground to ground type of projectile motion, because we have already taken some time to define, to understand a little bit more about motion in plane and two dimension। और ये दोनों motions हम next lecture में cover कर सकते हैं। And in the third lecture we can take up only the PYQs, the previous year questions। All right, so let us move ahead। So to understand the path of a projectile in a better manner, we have planned a demonstration here। So this is a syringe and we have filled it with water। So initially we will see that these water droplets are following a straight line path as we release an object। So we are releasing these water droplets and it is following a straight line path. All right. And now if I provide them an initial horizontal velocity also, राइट देखिए मैंने इनको सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और प्रोवाइड करी, तो इसका पाथ को इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब ये आगे भी बढ़ रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स और नीचे भी जा रहे हैं। दैट मीन्स इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इट इज हैविंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एज वेल। प्लस इसमें जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, बिकॉज दैट फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स ओनली। So this is an example of projectile motion also। Okay, so let us move on to the projectile of ground to ground। Let us draw a projectile in good amount of space। Say for example, this particle is projected at an angle of theta with horizontal and it is going to trace this path, right। हमने कहा इसको इनिशियल वेलोसिटी u से हमने थ्रो किया था एट एन एंगल थीटा। अब हमने बात करा कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो x और y कंपोनेंट में इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर बिहेव करती है, और x कंपोनेंट को हम सेपरेटली वन डायमेंशनल मोशन की तरह से यूज करेंगे और y कंपोनेंट को सेपरेटली वन डायमेंशनल मोशन की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो व्हाट वी विल डू, हम इस पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड कि इन पॉइंट्स पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की क्या वैल्यूज हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ब्रेक दिस वेलोसिटी इनटू x component and name it as ux and break this into y component and name it as uy। क्या हम ux और uy की वैल्यू भी बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ u एंड थीटा? यस ऑफ कोर्स। u का कंपोनेंट टुवर्ड्स दिस थीटा एंगल वुड बी u cos theta
and away from theta angle would be uy is equals to u sin theta. ठीक है, तो हम इसको यहां पर भी एक बार नोट कर देते हैं. ux is equals to u cos theta और uy है हमारा u sin theta. ऑल राइट, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में लेने की कोशिश करें. ऑल राइट, तो अब हम 1 2 3 4 5 पॉइंट्स पर भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट ड्यूरिंग दिस पाथ क्या हमें एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल रही है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में, यानी कि एक्सेलरेशन सिर्फ डाउनवर्ड्स होगा और उसकी वैल्यू होगी जी के बराबर. ऑल राइट, तो हम हर पॉइंट पर सबसे पहले ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है और उसकी वैल्यू जी है. यानी कि अगर मैं यहाँ पर ए एक्स की और ए वाई की भी वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं बहुत इजीली आप बता सकता हूँ. बताइए, क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है. अगर कोई भी एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन मूव अहेड. फर्स्ट पॉइंट पर हम वेलोसिटी को भी डिफाइन करते हैं. इसके लिए मैं एक ब्लू पेन का यूज कर लेता हूँ. Vx1 at first point or Vy1 at this first point is the y velocity. Similarly, second point पर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. Vx2 और Vy2. Similarly, point number 3, Vx3, Vy3. इस थर्ड पॉइंट को मैं टॉप मोस्ट पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं. ऑल राइट, सिमिलरली इन फोर्थ ऑल्सो a velocity will be in x direction 4 and y direction में क्या ऊपर की तरफ कोई velocity होगी या नीचे होगी? It seemingly it seems to us that it is going to be downwards. हम डाउन ले लेते हैं, मे बी फिर आंसर इज रॉन्ग तो हम लोगों को नेगेटिव आंसर मिल जाएगा. नो इश्यूज. हाँ जी भैया, आज भैया रहने देना. हाँ हाँ, ठीक है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. तो अब हम इसमें क्या वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन के बारे में भी कोई बात कह सकते हैं? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. हमने ये चीज नोट करी है. राइट, वी आर कीपिंग अप टू दिस. लेट अस गो टू अ फ्रेश पेज. हम बात करते हैं एनी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन. जो यहाँ पर हमने वी एक्स 1 2 3 4 5 डिफाइन करे हैं, क्या हम इसके लिए कोई इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं? ठीक है, इसको इंडिपेंडेंटली हम एक वन डायमेंशनल मोशन ट्रीट करेंगे, जिसके बारे में हमें दो इंफॉर्मेशन पता है पिछली वाली स्लाइड से, कि इसमें ए एक्स की वैल्यू कितनी है 0 और यू एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है यू कॉस थीटा के बराबर. ऑल राइट, तो यहां से मैं वी एक्स की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? यू ऑफ एक्स प्लस ए इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम पीरियड. As a in x is 0 because there is no acceleration in x direction, so Vx comes out to be equal to ux, which is equal to u cos theta. That means velocity in x direction is not changing at all. Velocity x direction की बिल्कुल सेम रहेगी थ्रू आउट द पाथ, बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली है. ठीक है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं एज आवर फर्स्ट स्टेटमेंट. सिमिलरली, लेट अस मूव to v in y direction.
इसके लिए हम क्या लिखेंगे, u in y डायरेक्शन प्लस a in y डायरेक्शन इंटू टाइम a in y direction is equals to minus g as per our previous slide. All right, and u in y direction is equal to uo sine theta in terms of theta if we talk about. So what is the final equation that we get for Vy? Vy is equal to uy की वैल्यू कितनी है, u sin theta प्लस माइनस ऑफ g इंटू टी. दैट मीन्स Vy के लिए ये इक्वेशन हमारी वैलिड रहेगी फॉर अ प्रोजेक्टाइल गोइंग फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड. ऑलराइट, इसको हम अपना सेकेंड स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं. ठीक है, सिमिलरली एक छोटा सा कैच और है. एट दिस टॉप मोस्ट पॉइंट, ऑलराइट, एट दिस टॉप मोस्ट पॉइंट, in similar manner as in one dimensional motion during a body going from ground and traveling up in a straight line, at the topmost point velocity was zero. Similar is the case here in projectile motion also. यहां पर भी टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल. ठीक है, उसके बाद देखिए सिर्फ और सिर्फ डिसेंड कर रही है बॉडी. दैट मींस एक्स डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट है. एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी यहां पर भी हमें u cos थीटा के इक्वल मिलेगी, बट y डायरेक्शन की वेलोसिटी इस पॉइंट पर जीरो के इक्वल हो जाएगी. तो हम इसको भी एक केस लेके लिख देते हैं, v at top is equal to zero. और फोर्थ नंबर में हम लिखते हैं एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज जीरो and acceleration in y direction is constant and its value is equal to minus of g. All right, so let's move ahead and have a look at the key facts that we have read in this projectile motion. Acceleration at all the points during projectile motion is equal to g vertically downwards. That means minus g के equal हम इसका value लिखेंगे if we are taking vertically downwards as negative direction. Which is constant है. Air resistance is negligible. ये एक condition है. Obviously, we are neglecting the air resistance. Otherwise, these equations might not be valid. There is no acceleration in x direction. Ax is zero. This we have already read here. See, a in y direction is minus g and in x direction is zero. Horizontal component of velocity remains constant and अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा u cos थीटा के बराबर रहता है, जो कि हमने यहाँ पर ये पॉइंट में कवर कर लिया. वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी जीरो. दैट इज v at top is zero. We have just covered this here. Angle of velocity vector with horizontal reduces till h max and then increases again. इस पॉइंट को एक बार देखते हैं. वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से एंगल h मैक्स तक बढ़ता है. ठीक है, ये हाईएस्ट इसका पॉइंट है. तो एक मार्कर का कलर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से. एंड दिस वी विल नेम एज h max. This is the maximum height till which this projectile is reaching. Correct? ये बात हमें सभी को समझ में आती है. All right. यहां तक हमसे कहा गया कि ये वेलोसिटी वेक्टर का जो एंगल है वो घटेगा, यानी कि इट विल रिड्यूस एंड देन अगेन इट विल इंक्रीज हॉरिजॉन्टल के साथ. तो एक बार इस चीज को भी देखते हैं. ठीक है, अगर हम यहां पर वेलोसिटी वेक्टर का एंगल देखते हैं एक्स डायरेक्शन का, यानी कि विद द हॉरिजॉन्टल, इस एंगल को मैं ले लेता हूं फाई 1. ठीक है, यहां पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा जो कि वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा. यहां पर मैं ले लेता हूं एंगल फाई 2 और यहां पर मैं ये टेंजेंट ड्रॉ करता हूं जिसका कि एंगल 0 डिग्री होगा ऑब्वियसली. ठीक है, अगेन इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट हेयर and its angle with the horizontal is say for example phi 3,
and again I draw this tangent. Again this angle is phi 4. तो क्या हमें ये चीज भी दिखाई दे रही है कि दिस थीटा is greater than phi 1 is greater than phi 2 and phi 3 is equal to 0. इसको मैं अलग से नोट कर देता हूँ. phi 3 तो अच्छा हमने वहां लिया है, तो एक काम करता है, या phi at top लिख देता हूँ is equal to 0. एक ये हमें रिलेशन मिलता है कि यहाँ पर थीटा देखिए धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है टिल इट रीचेस एच मैक्स, और एच मैक्स के बाद वापस से थीटा 3 is greater than phi at top and sorry we must write phi 4 is greater than phi 3 is greater than phi at top. ठीक है, और यहां पर भी अगर हम चाहें तो phi at top को 0 इसके साथ में ग्रेटर देन कर सकते हैं phi 2 को उससे भी, दैट इज ऑल राइट. तो हमें ये फोर्थ पॉइंट भी यहाँ पर समझ में आ चुका है. ऑल राइट, सो दीज आर द की फैक्ट्स एंड you must note these points. These are very important points. So let's move on to the three components of our projectile motion, which is very important. So let us draw the same projectile once again, and here we would like to denote these three components also and understand similar way this projectile is fired at an angle theta. Let us mark firstly about the time of flight. Let us understand what this is. This is the total time for which the object is in air, or we can say the time required to reach from point of release to the point of landing. ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ रिलीज. अगर if it is not visible, I'll write it here, point of release, and this is the point of landing. यहां से यहां तक पहुंचने में जितना भी टाइम लगेगा या फिर जितनी देर के लिए पार्टिकल हवा में रहेगा इन फ्लाइट, देन इट विल बी कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी. ऑलराइट, अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड की. मैक्सिमम हाइट अटेन्ड हम लोग रेड कलर से डिनोट करते हैं. दिस इज द एच मैक्स. इसका डेफिनेशन इसके नेम से ही क्लियर होता है. द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन. द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट. ऑल राइट, और रेंज की बात करते हैं हम तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होता है. The total horizontal distance covered, the total horizontal distance covered is called range, and it is denoted by capital R. All right. Okay. So let us try to derive
the formulas for all of these three components one by one. So let us start with the time of flight. So let's now talk about time of flight. All right. इसके लिए हमने अभी तक जो भी सिचुएशंस पढ़े हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर नोट कर लेते हैं हम लोग, है ना. These all things will be utilized. सबसे पहले हम नोट करते हैं u in x direction was u cos theta, u in y direction was u sin theta. Similarly, acceleration in x direction was 0 and in y direction it was constant and equal to minus g. Similarly, we have read about two more things. Velocity at topmost point in y direction was 0. इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और ये यूज होने वाला है. ठीक है. टॉप मोस्ट पॉइंट पर y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 थी और u in x direction is equals to constant throughout the path. चलिए इन चीजों का यूज करते हुए हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की कोशिश करते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें यह देखना है कि फ्रॉम दिस पॉइंट से आई गिव दिस पॉइंट नेम ए एंड दिस पॉइंट नेम बी. ए से बी तक जाने का टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है. लेट अस कंपेयर दिस विद अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन टाइप ऑफ कंडीशन इन वाई एक्सिस. ऑलराइट, वाई एक्सिस में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन टाइप की कंडीशन से इसे लिंक करने की कोशिश करते हैं. क्या होता था, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता था, यहां से, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करके ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता था. जस्ट अ सेकेंड. और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती थी, इक्वल टू 0 के बराबर. ऑलराइट, अभी यहां पर हमने जब इसे y डायरेक्शन में कंपेयर करना है तो हमें y वेलोसिटी की बात करनी होगी. ऑलराइट, तो हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी एक वन डायमेंशनल मोशन वर्क कर रहा है इन y डायरेक्शन एंड एक वन डायमेंशनल मोशन वर्क कर रहा है इन x डायरेक्शन. तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम y डायरेक्शन का यूज करेंगे. तो हमें यह दिया गया है कि v in y direction is equal to 0, u in y direction is equal to u sin theta as we can see there. और हमें फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट. तो क्या हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर सकते हैं? सिमिलरली एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज आल्सो गिवन टू अस एज माइनस g. तो हम इक्वेशन का यूज करते हैं v in y is equals to u in y plus a in y into टाइम. इससे हमें कहां तक का टाइम मिल रहा है पहले हम इस चीज को भी देखते हैं. फ्रॉम दिस पॉइंट A to B एंड लेट मी नेम दिस पॉइंट एज C. A से C का टाइम हम यहां पर निकाल सकते हैं टू द मैक्सिमम हाइट व्हेन वी आर रीचिंग. ठीक है, यहां से लेके मैक्सिमम हाइट पर V टॉप कितनी है इन y डायरेक्शन 0 है. तो मैक्सिमम हाइट तक का टाइम जितना हमें मिलेगा उतने ही टाइम में ये ऑब्जेक्ट वापस आएगा. ठीक है, जितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उतने ऑब्जेक्ट टाइम में ये ऑब्जेक्ट वापस आएगा, जैसा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी होता था. टाइम टेकन टू गो अप was equal to time taken in coming down. ठीक है, जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही टाइम वापस से नीचे आने में लगेगा. टाइम रिक्वायर्ड फॉर पाथ ए बी इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर पाथ बी सी. ये चीज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में करते थे. सेम विल बी अप्लाइड इन दिस केस ऑल्सो, क्योंकि हमने एक एक्सिस में इसे ब्रेक कर दिया. ऑलराइट, तो हम देखते हैं भाई, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच रहा है तो हमारी वेलोसिटी 0 हो जाती है, इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी. यहां से हमें टाइम की वैल्यू मिलती है यू साइन थीटा अपॉन जी. दिस इज द टाइम जब ये बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई. क्या सेम टाइम लगेगा वापस आने में? बिल्कुल लगेगा सर. तो हम इस वैल्यू को T1 मान लेते हैं, राइट. एंड वी से दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू T1 प्लस T2 and
T2 इज इक्वल टू T1। तो T की वैल्यू कितनी मिल जाती है हमें? 2 T1 के बराबर। T1 को यहाँ प्लेस कर दिया हमने। T2 की वैल्यू, T की वैल्यू हमें मिलती है 2U साइन थीटा अपॉन G के बराबर। यानी कि टोटल टाइम टू कवर दिस projectile is coming out to be this. Alright, इस रिजल्ट को हम याद रख लेंगे। This is an important one. Alright. Now let us move on to the result for maximum height. Maximum height की अगर हम बात करते हैं, हम डायग्राम पर आते हैं एक बार फिर से। इस पॉइंट की बात हो रही है, हमें ये पॉइंट निकालना है जब ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर है। तो हम किस एक्सिस के मोशन को यूज करना चाहिए हमें? थिंक अबाउट इट। कैन वी यूज एक्स एक्सिस मोशन टू फाइंड आउट एच मैक्स? नो, वी कैन नॉट। वी हैव टू यूज मोशन इन वाई डायरेक्शन ओनली। अच्छा, एच मैक्स के लिए क्या कंडीशन हमारे दिमाग में आती है कि सी पॉइंट पर जब हमारी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है तभी हम मैक्सिमम हाइट पर रीच हो। ऑलराइट, तो यही सेम कंडीशंस को हम यूज करेंगे मैक्सिमम हाइट के लिए भी। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 0 व्हेन वी रीच एच मैक्स। u in y direction is equal to u sin theta. Acceleration in y direction is equal to minus g. क्या हम यहां से s की वैल्यू निकाल सकते हैं? यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन। वेरी गुड। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इन y डायरेक्शन इनटू डेल्टा y, यानी कि चेंज इन हाइट, y एक्सिस में कितना पोजीशन में चेंज हुआ। ऑल राइट, वी वाई की वैल्यू यहां से हमें क्या पता है? 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई इज यू साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एच मैक्स। यहां पर मैं इसकी वैल्यू को प्लेस कर देता हूं कि ये डेल्टा वाई जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इनिशियल पॉइंट टू दिस एच मैक्स, यही वाला वाई पॉइंट इसमें फाइंड आउट होगा। तो इसको मैंने एच मैक्स से रिप्लेस कर दिया। अब मुझे यहां से एच मैक्स की वैल्यू किसके इक्वल मिलती है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इसके बराबर। ऑलराइट, इस रिजल्ट को भी हम लोग याद रखेंगे। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द रिजल्ट फॉर रेंज। रेंज के लिए कैसे रिजल्ट को फाइंड आउट करें? रेंज से हमें क्या समझ में आता है? लेट अस मूव टू आवर डायग्राम अगेन। रेंज मीन्स द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। सोचिए इसके लिए कौन से एक्सिस को यूज करके हमें काइनेमेटिक इक्वेशन लगानी है, बताइए। इफ यू वांट टू फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम, तो हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस की ही बात करनी होगी। दैट मीन्स वी समवेयर हैव टू टॉक अबाउट द एक्स एक्सिस। तो हम लिखते हैं u in x direction, we know it is equal to cos theta. Acceleration in x direction is always 0, very important. Right? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमें कितना पता चल चुका है? अपने पास फॉर्मूला जो आया है u साइन थीटा अपॉन g, जो कि हमने अभी फर्स्ट रिजल्ट में फाइंड आउट किया है। इतना टोटल टाइम लग रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, इक्वेशन को यूज करके ट्राई करते हैं। Let me draw a clear line so that these notes can be easily used later on also. हम बात करते हैं u in x direction is given to us. So let us say delta x, which is the displacement in x direction, is equal to u in x direction into time taken
plus half into acceleration in x direction into t square. This is the second equation. ऑल राइट, यहां पर डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली बताइए. डेल्टा एक्स विल रिप्रेजेंट हेयर द रेंज, यानी कि टोटल डिस्टेंस. देखिए कितना कवर हुआ है, इसको हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है और इसको नाम दे दिया है रेंज का, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं आर से. इज इक्वल टू यू इन एक्स डायरेक्शन इज यू कॉस थीटा, और कितने टाइम के लिए ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, इतने टाइम के लिए. इसकी वैल्यू भी मैं प्लेस कर सकता हूं, 2u sin थीटा अपॉन जी, प्लस क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? बिल्कुल नहीं है सर, तो इसको हम जीरो कर देते हैं. आर की वैल्यू मुझे क्या मिलती है? 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन जी. इसको दो तरीके से हम लोग लिखेंगे. सबसे पहले r इज इक्वल टू u² इंटू 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी. 2 sin theta into cos theta is equal to sine of 2 theta u square sin 2 theta upon g. This is our result number 1. All right. And we are going to remember this one. In a similar fashion, can we change it in another form also? R is equal to 2 times of u sin theta into u cos theta upon g. Tell me about this. All right, let me use eraser here. This is the velocity in y direction and this is the velocity in x direction. तो क्या हम इसे ux और uy के टर्म्स में भी लिख सकते हैं? पहले हम ux लिख देते हैं, u in x direction, u in y direction upon g. So the result for range can also be denoted in this manner. All right, these two results are important and we can learn them. So with this, we shall discuss some special cases of range as well. First is maximum range. With this term, what do we mean? For a given speed u, at what angle must an object be projected to achieve maximum value of range R. All right. मैक्सिमम रेंज का मतलब है कि एक गिवन स्पीड u पर हमें किस एंगल पर प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना चाहिए कि हमें ये रेंज की वैल्यू मैक्सिमम मिल जाए. राइट. शुड दिस एंगल बी समवेयर हेयर 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 हेयर, कहां इसको थ्रो करें कि हमारे को रेंज की वैल्यू मैक्सिमम मिल जाए. राइट. एंड द वेलोसिटी u इज फिक्स्ड, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी u फिक्स्ड है, उसके लिए कितना एंगल चेंज करें कि हमें रेंज मैक्सिमम मिल जाए. ऑल राइट. ऑल राइट. So let us see what result we have for range is R is equal to u square sin 2 theta
अपॉन जी। क्या हमें यह पता है कि मैक्सिमा किस पॉइंट पर अचीव होता है? व्हेन दिस वेरिएबल is differentiated with respect to this variable as u square upon g is constant। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से पहले लिख लेता हूं रिजल्ट को, u square upon g which is a constant into sin of 2 theta। मुझे क्या निकालना है? किस थीटा एंगल पर ये रेंज मैक्सिमम होने वाली। दैट मीन्स dr upon d theta must be 0 at whichever point, then the value of range is going to be maximum। हम क्या करते हैं? dr अपॉन डी थीटा को जीरो करते हैं। dr अपॉन डी थीटा कम्स आउट टू बी u स्क्वायर अपॉन जी इंटू डी अपॉन डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा। जीरो इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन जी कैन नॉट बी जीरो, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। दैट मीन्स दिस टर्म ओनली हैज टू बी जीरो। साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना होगा? cos 2 थीटा इनटू 2 के बराबर। चेन रूल से करेंगे, पहले साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा, फिर 2 थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा इज 2। तो हमने कहा कि ये टर्म जीरो नहीं हो सकता, 2 जीरो नहीं हो सकता। तो फाइनली हमें क्या मिलता है? cos 2 थीटा मस्ट बी जीरो टू मेक दिस टर्म जीरो। cos 2 थीटा कैन बी जीरो एट an angle when 2 theta is equal to 90 डिग्री। जब 2 थीटा की जगह 90 डिग्री होगा तभी वैल्यू जीरो आएगा ना cos का। दैट मीन्स थीटा कम्स आउट टू बी 45 डिग्रीज when for r to be maximum। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था एट द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर कि वाई Arshad Nadeem was able to throw the javelin at 92.97 meters, you know that much was the range। यही रेंज होता है फाइनली। तो ऐसा क्यों है कि वो 34 से 36 डिग्रीज के बीच में इस जेवलिन को थ्रो करा उसने, या फिर बाकी जेवलिन थ्रोअर्स भी इसी एंगल के बीच में इसे थ्रो करते हैं और एक मैक्सिमम रेंज को अचीव करते हैं, जबकि हमारा रिजल्ट तो कुछ और कह रहा है। So what is the answer to this? As I promised you that I will be telling you at the end of the lecture, so we are just near to the end of our lecture. Some 2-3 questions are left and equation of trajectory is only left. So क्या कैच है इसमें? क्या आपने इस बारे में सोचा अब तक? All right. Even if you know there is some hinge or there is some confusion, let me clear it out. कि ये 45 डिग्री जो मैक्सिमम रेंज के लिए हमने निकाला है, दिस इज अ केस ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ऑलराइट, क्या अरशद नदीम इसको ग्राउंड पर खड़े होकर फेंकता है? हाँ सर, ग्राउंड पर खड़े होकर तो फेंकता है, बट क्या अरशद नदीम की खुद की कोई हाइट नहीं है? सर उसकी हाइट तो 6 फीट 3 इंचेस है। तो 6 फीट 3 इंचेस की हाइट का इंसान अपने हैंड को भी ऊपर करके जब कोई चीज फेंकेगा, उसका हैंड भी लगभग होगा, आई थिंक फॉर एग्जांपल 1 फुट का तो उसका हैंड भी होगा, तो 7 फुट 3 इंचेस से फॉर एग्जांपल एक चीज रिलीज हो रही है, तो क्या वो ग्राउंड टू ग्राउंड का केस है? बिल्कुल नहीं सर। 7 फीट 3 इंचेस इज मोर देन 2 मीटर्स, आई मस्ट टेल। तो 2 मीटर अबव द ग्राउंड हम अगर कोई चीज को थ्रो कर रहे हैं, दैट इज नॉट द केस ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। यहां से आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। वो एग्जाम्पल है एक फ्रॉम अ हाइट अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन। सो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट का एग्जाम्पल है। ये था उसका रीजन थियोरेटिकल। इसको मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जबकि हम प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट की भी बात करेंगे। वी विल बी टेकिंग दिस एज अ केस स्टडी एंड सॉल्व इट कि हाँ भाई, क्या हाइट से थ्रो करने पर ये मैक्सिमम रेंज का एंगल है? नहीं आएगा। ऑलराइट, सो दैट वाज द रीजन बिहाइंड इट। आपको याद भी रहेगा अब ये एंगल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड है, हाइट फ्रॉम प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट के लिए वैलिड नहीं है। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें रेंज के बारे में एक चीज और देखने को मिलती है। रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड। ठीक है, फिर सेम केस है कि सेम स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, बट दो एंगल ऐसे होंगे जिसके लिए हमें सेम रेंज
मिलने वाली है। ऑल राइट, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं, हम क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट में। दिस मच इज कट, इसके आगे मैं फिर से कर रहा हूँ। All right. So let us see. All right. So this is a second special case for range. क्या कहता है ये हमसे? Range is same for complementary angle for object projected with same speed. यानी कि एक u स्पीड से हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और दो एंगल्स ऐसे होंगे जिसके लिए हमें सेम रेंज जो है वो मिलने वाली है. So let us try to visualize it a little bit. हम क्या कहना चाहते हैं यहां पर? एक प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके का है और एक प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके का दिख रहा है. ऑल राइट. हमने क्या कहा, इस प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया था एट एन एंगल से फॉर एग्जांपल थीटा, और इसको हमने प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल थीटा 2. पहला वाला थीटा 1 और दूसरा वाला थीटा 2. ठीक है. अब हम कह रहे हैं कि इन एंगल्स में क्या रिलेशन होना चाहिए. ऑल राइट, तो हम अपना रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं जो हमें अभी पता चला है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर. ऐसे दो एंगल्स होते हैं विच आर थीटा एंड 90 माइनस थीटा, जिसके लिए हमें सेम रेंज मिलती है. हम एक काम करेंगे, इस थीटा एंगल के लिए एक रेंज को मान लेंगे R1. ठीक है, दिस R1 इज वैलिड फॉर दिस एंगल थीटा. हम R2 की वैल्यू निकालते हैं फॉर एंगल 90 माइनस थीटा. यू स्क्वायर साइन 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा अपॉन जी. अगर R1 और R2 सेम आते हैं, दैट मीन्स द रेंज इज सेम फॉर दीज टू एंगल्स. What is the value of sine 180 minus 2 theta? U square. Sine 180 minus theta is again sine theta. It is in second quadrant and positive. Sine of 2 theta वापस से यहां पर हम लिख लेंगे. क्या यहां से हमें R1 और R2 की वैल्यू सेम मिल रही है? That means I'll write here R1 is equal to R2 for two angles theta and 90 minus theta. That means if theta 1 here is equals to theta, then theta 2 is equals to 90 minus theta, and these are the two complementary angles. These are called the complementary angles for which we get the same range. All right. इस रिजल्ट को भी हम लोग याद रखें. सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू सम प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस अबाउट द टॉपिक, अबाउट द नॉलेज दैट वी हैव गेन्ड टिल नाउ. ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं एंड लेट अस स्ट्रेंथन आवर नॉलेज आल्सो.
This problem is there in front of us. A projectile is thrown with a speed of 50 meter per second at an angle of projection 37 degrees. All right. So let us try to visualize in initially some of the questions. All right, then you will be surely, able to do it very easily. Let us draw this projectile also. This is projected at an angle of 37 degree and initially u, that is the initial speed, is given to be 50 meter per second. All right. And now this projectile will go ahead. So what is asked from us? Velocity vector पूछा है हमसे पहले पार्ट में and speed of the particle after 2 seconds of its projectile. Velocity vector से क्या मतलब है? V vector is equal to Vx I cap plus Vy j cap, and magnitude of this velocity vector will give us speed. Magnitude will be represented by Vx square plus Vy square. तो ये दो चीजें हमसे पहले पार्ट में पूछी है. लेट अस ट्राई टू सॉल्व फॉर दीज टू फर्स्ट. तो हमें क्या करना है? इनिशियली देखिए हमें ये प्रोजेक्टाइल दिया है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज एंड ट्राई टू मेक दिस हियर अगेन. ऑलराइट, इसका एक इमेज जल्दी से बना लेता हम लोग. Alright, let us divide this into two components. Ux will be 50 cos 37 degrees and u in y component would be 50 sin 37 degrees. ठीक है, तो whatever information we are getting, we'll start noting all of them, right? Okay. So we will be noting the information. U in x direction is given to us as 50 cos 37. U in y direction is given as 50 sin 37. And for projectile, we already know A in x direction is 0 and A in y direction is minus g. So we have to find the velocity vector after 2 seconds. Say for example, after 2 seconds, this body reaches here. तो हमें इसका Vx component और Vy component बनाना है. ठीक है, दिस वी हैव टू टेक. तो हम क्या करेंगे? इंडिविजुअली इसको x और y एक्सिस में काइनेमेटिक इक्वेशंस लगा के फाइंड आउट कर लेंगे. कैसे करेंगे भाई? Vx की वैल्यू किसके इक्वल होगी? Ux प्लस ax इंटू टी के बराबर. V in x direction we have to find out. U in x direction is given to be 50 cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5. जैसे ही हमें एंगल दिखाई देता है कोई से, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जल्दी से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ऑलराइट, दिस शुड बी अ राइट ट्राइंगल. ऑलराइट, एग्जैक्टली मैंने ड्रॉ नहीं किया है अभी उसको, बट फॉर योर सपोर्ट एंड असिस्टेंस आई वुड से, जैसे ही हमें 37 और 53 डिग्री के एंगल दिखे, हम एक ट्राइंगल बना लें जिसमें एक एंगल को 37, एक को 53 कर लें. 37 के सामने वाली साइड 3, उसके नीचे वाली साइड 4 और हाइपोटेन्यूज 5. ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होना है, तो इसको सबसे पहले आप 5 कर सकते हैं दोनों ही एंगल्स के केसेस. 37 के सामने छोटी साइड रहेगी, ये चीज याद रखेंगे तो तीनों चीजें इजीली हमें याद हो जाएंगी. अभी इसमें क्या है? 37 डिग्रीज हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है. तो cos 37 विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5 प्लस एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0. तो Vx की वैल्यू हमें मिल जाती है जितनी इनिशियली Ux थी, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड के बराबर. ठीक है. सिमिलरली क्या मैं इसमें Vy की वैल्यू भी निकाल सकता हूं? कम ऑन.
go ahead quickly. Vy here, will be equal to u in y direction plus a in y direction into time. Alright, so v in y is equals to u in y is 50 into sine of 37 is c, perpendicular upon hypotenuse, 3 by 5 plus acceleration in y direction is minus 10 into time is given to be 2 seconds. ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला है 2 सेकंड पर हमें निकालनी है वेलोसिटी, तो टाइम की वैल्यू हमने यहां से डाल दी। ऑब्वियसली हमें दिखाई भी दे रहा है, देखिए माइनस हो रही है एक टर्म दूसरे टर्म में से, तो ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी कम होती दिखाई दे रही है हमें। 30 minus 20 gives us 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी x डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रही है 40, y डायरेक्शन में आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं वेलोसिटी वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं यहां पर? All right. So V vector can be represented as Vx I cap plus Vy j cap. V vector is equal to 40 I cap plus 10 j cap. All right. This is the answer to our part 1 and sub part 1. अब हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के बारे में, तो हम क्या आंसर करेंगे? होल अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दैट गिव्स अस होल अंडर रूट ऑफ 1600 प्लस 100 and the answer comes out to be 10 root 17 meter per second. All right. So this is the final answer for part 1. Let's move on to the next part. What they are asking us, angle it makes with horizontal after 2 seconds. हमें ये निकालना है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल से आफ्टर 2 सेकेंड्स कितना एंगल बना रहा है। तो अगर हमें वेलोसिटी वेक्टर ही मिल चुका है ऑलरेडी, वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी वेक्टर, तो मैं कहता हूं कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, कैसे निकालते हैं? यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, tan थीटा is equal to Vy upon Vx, right? Tan theta here would be equal to, I'll write here only, tan theta would be equal to Vy upon Vx. This theta angle is the angle with the horizontal that velocity makes at any time t. अब वो टाइम t क्या है? 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स पर वेलोसिटी कितनी है? 40i plus 10j, तो 10 upon 40 will be the value of tan theta, and theta is equals to tan inverse 1 upon 4. So let us see if we have a page available. Okay, let's move on to this page and write it again. Tan theta is equals to Vy over Vx. V vector had come out to be 40i plus 10j cap. So from here we can say that tan theta is equals to 10 upon 40. Theta is equals to tan inverse 1 upon 4. So this is the answer for your part B. Let us move on to part C here. Find displacement vector and displacement after t equal to 2 seconds. हमें displacement की भी वैल्यू उसमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करा जाए इसको? आफ्टर 2 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या कह सकते हैं? सेम काम करना है हमें, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर हमें एक्स और वाई पोजीशंस मिल जाती हैं हमारे ऑब्जेक्ट की, तो हम उस अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। ऑल राइट, तो एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स विल बी इक्वल टू all right, x will be equal to ux into t plus half ax t square। क्या हमें x डायरेक्शन में कभी भी एक्सेलरेशन की जरूरत होती है तो नेक्स्ट टाइम से हम इस टर्म को लिखना ही बंद कर देते हैं। x comes out to be u cos 37 into टाइम कितना बोला है हमें, कितने टाइम पर पोजीशन निकालनी है, is it again at t equal to 2 seconds? Okay, so we'll place this time equal to 2 seconds। तो हमें x कोऑर्डिनेट क्या मिल जाता है हमारा, u की वैल्यू, ओके ऑलरेडी we have already found out u cos theta। Here it came out to be 50 into 4 by 5, it was equal to 40। तो हमें ऑलरेडी u in x डायरेक्शन की वैल्यू पता है, 40 into 2 equals to 80 meter। दिस इज माई x पोजिशन। बात करते हैं y पोजिशन की, y is equals to uy t plus half ay t square। y is equals to u sin थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, देख लीजिए, u sin थीटा uy की वैल्यू थी 50 into 3 by 5, 30। All right, so 30 into t is equal to 2 seconds plus half into minus of 10, we take value of g as 10 into time again 2 का square, 1 2 cancelled with this, y is equals to 60 minus 20 is equals to 40 meters। तो क्या मैं अपना r वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं फाइनली, 80 I cap plus 40 J cap। Please check the calculations. U sin theta is 30 into 2 plus half into minus 10 into 2 square minus 20. Okay, it looks to be fine। R vector comes out to be 80 I cap plus 40 J cap। हमसे क्या क्या पूछा है इन्होंने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने आंसर कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड पूछा है हमसे साथ में, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, दैट आल्सो यू कैन इजीली फाइंड आउट, 80 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, सॉरी I have written 40 square first, I think, not to make any confusion। 80 square is 6400 plus 40 square is 1600। We can solve it and find out the value of magnitude of r vector also. That will be our answer to the part C। Okay, so similar kind of second question we are going on to now। For projectile from ground to ground, h is equal to r, find angle of projection। I think this is an easy one। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल दे रखा है हमें, हमारे सारे फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़े हैं वो वैलिड है। h इज इक्वल टू r दे रखा है, दिस h इज एक्चुअली मैक्सिमम हाइट, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। h का हमें क्या फॉर्मूला पता है बताइए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हमें ये इक्वल दिया हुआ है रेंज के, यानी कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g के। जो जो चीजें कैंसिल होती हैं उनको हम यहां से हटाते हैं, राइट। हमें यहां से क्या मिलता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 2 थीटा को भी ओपन कर देते हैं, 2 साइन थीटा cos थीटा, because here we have sin theta, so it will make our calculations easy to find theta। हमें क्या मिलता है यहां से, साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 4 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, tan theta comes out to be equal to 4 and theta comes out to be tan inverse 4. This is the angle of projection for which height and range comes out to be equal. Alright, so let us move on to the next question. This question says, for two angles of projection, range is same and maximum vertical heights are different. ऐसे दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जहां पर रेंज सेम होती है, इसके बारे में अभी हमने रीड करा है, दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले एंगल्स, जो कि क्या होते थे, अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा के बराबर. वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन H1, H2 एंड R. ठीक है, हमने ये केस ऑलरेडी पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, बस हमें क्या करना है, थीटा और 90 माइनस थीटा को H1 और H2 के फॉर्मूलाज में पुट करना है. तो मैं आपको बता देता हूं ये क्वेश्चन कैसे होगा. ट्राई टू डू दिस इन होमवर्क बिकॉज देयर शुड बी समथिंग दैट यू मस्ट डू एट होम ऑल्सो टू स्टे कनेक्टेड. हमने अगर H1 हाइट निकाली एट दिस एंगल थीटा, तो हमें सेम रेंज दूसरे किस एंगल पर मिलेगी, 90 माइनस थीटा. H2 निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g. ऑलराइट, अब मुझे इन H1, H2 और R में एक रिलेशन फाइंड करना है. ट्राई टू डू दिस, इट्स इजी. ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा विल बिकम u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा एंड स्क्वायरिंग इट विल रिमेन सेम. ठीक है, तो H1 और H2 की आपको वैल्यू यहां से मिली हुई है. अब बस इसको आपको कन्वर्ट करना है R के टर्म्स में. यू कैन डू इट इजीली ऑन योर ओन. ऑलराइट, let's move ahead to our next topic, equation of trajectory. Alright, equation of trajectory से हमारा क्या मतलब है, मैं एक रफली यहां पर एक प्रोजेक्टाइल ड्रॉ करता हूं. हमारा ये कहना है that at any point on the projectile for any value of x can we find out the value of y. ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, यहां पर कोई y वैल्यू रीड कर रहा होगा और यहां पर कोई x वैल्यू रीड कर रहा होगा. ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल का ऑब्जेक्ट, इसके डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है यहां पर. डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज बीइंग रेड लाइक दिस. तो हमें क्या करना है, x और y में रिलेशन फाइंड आउट करना है. हमें x डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी तक क्या पता है, लेट अस राइट इट. x इज इक्वल टू, in terms of t if we talk about, u cos theta into t, u in x direction into time plus acceleration in x direction is 0. हमने बात करा था कि हम नहीं लिखेंगे इसको, तो इसको हम 0 कर देते हैं. तो हमें बेसिकली x is equal to u cos theta into t, this we know. From here can we write the value of t also, which is equal to x upon u cos theta. ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. यानी कि एट एनी कोऑर्डिनेट x हमें टाइम की वैल्यू मिल गई, x कोऑर्डिनेट, x में डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन उसकी u cos थीटा यानी कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी. ऑलराइट, कैन वी सिमिलरली राइट द y displacement also, which will be equal to u sin theta, velocity in y direction, into time plus half into acceleration in y direction is equal to minus g into t square. ठीक है, मैंने पूरा फिर से नहीं लिखा है. This is u y t plus half into a y into t square. So you can read it like that. क्या मिलता है मुझे यहां से y कोऑर्डिनेट u sin theta, क्या t की वैल्यू मैं यहां से लेके पुट कर सकता हूं, बिकॉज एट दैट वेरी मोमेंट, मतलब दिस मच टाइम
is covered by the object to reach this x position. इसी टाइम पर हमें y पोजीशन कैलकुलेट करना है. So we can place the value of this t x upon u cos theta here plus half into minus g into x upon u cos theta whole square. इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिलेगी, बहुत ही सुंदर सी. ठीक है, कोशिश करते हैं क्या क्या चीज इसमें रिजॉल्व हो पा रही है. u से u कैंसिल. वी कैन राइट हियर y इज इक्वल टू x tan theta, right, sin theta upon cos theta because tan theta, minus gx square upon 2 u square cos square theta. This is called the equation of trajectory. Very important. If we talk about IIT JEE, they are very interested in this equation. And there have been a record of many previous year questions coming up based on this equation as well. ठीक है, तो जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री है उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है. ये किस फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल ग्राफ की किस किस फॉर्म ऑफ ग्राफ की इक्वेशन है ये बताइए आप. y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx फॉर्म की इक्वेशन दिखाई देती है. तो क्या ये इक्वेशन एक पैराबोलिक टाइप ऑफ ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी? बिल्कुल करेगी. ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप की इक्वेशन कैसी ग्राफ बना के देती है हमें? एक पैराबोलिक ग्राफ. ठीक है, लेट अस मूव अहेड और हम इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को एक डिफरेंट फॉर्म में भी लिखने की कोशिश करते हैं. y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. दिस इज द इक्वेशन दैट वी गॉट ऑन आवर प्रीवियस स्लाइड. हम इसको रेंज के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. राइट, किस तरीके से करेंगे? माइनस इस g को नीचे लेके आएंगे, ऊपर रहने देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g. यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से न्यूमरेटर में और साइन थीटा से डिनोमिनेटर में. ऑल राइट, so what do we get here? y is equals to x tan theta minus x square upon, इसको कन्वर्ट करते हैं हम, u स्क्वायर 2 sin theta cos theta 2 sin theta cos theta अपॉन g tan theta. ठीक है, अब हमें क्या करना है? लास्ट स्टेप में x tan थीटा को इसी तरीके से लिखना है, माइनस इस tan थीटा को ऊपर लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर tan थीटा अपॉन, क्या ये इक्वेशन u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g. Can we name this as a range? Yes, we can do it surely. So let us make this in the form of range minus x square tan theta upon r. यहां से हम x tan theta को कॉमन लेंगे और हमें फाइनली मिलेगा आंसर 1 minus x upon r will remain in the bracket, and this is the equation of trajectory part 2 in the form of range. Alright, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के दो फॉर्म हमने पढ़ लिए. y is equals to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta, और y is equals to x tan theta 1 minus x upon r के बराबर भी ये वर्क करेगा. All right. So we have another question with us.
based on the equation of trajectory that we have just read. At any point P on trajectory of a projectile motion with coordinates x, y. यानी कि एक विजुअलाइजेशन कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, इस पर हमसे कह रहा है एट एनी पॉइंट पी ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. तो हम यहां से एक ट्रेजेक्ट्री बनाते हैं, है ना. हमसे कह रहा है एट एनी पॉइंट पी, इस पॉइंट पी को नाम दे देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं एक्स कॉमा वाई. द एंगल मेड विद इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज अल्फा कॉमा बीटा. ऑलराइट, तो हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन से एंगल मेड को लिख देते हैं, इनिशियल वाले को अल्फा. देखिए ये इनिशियल पोजीशन है और दिस इज द फाइनल पोजीशन. सिमिलरली फाइनल पोजीशन के लिए जो एंगल मेड है वो है बीटा के बराबर. हमसे पूछ रहा है कि हम ऐसा रिलेशन निकालें, प्रूव दैट tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा. प्रोजेक्टाइल इज इनिशिएटेड एट एन एंगल थीटा, यानी कि इनिशियल एंगल जो प्रोजेक्टाइल का है दिस वन, दिस इज गिवन टू बी थीटा. ऑलराइट, हमें क्या करना है, tan अल्फा और tan बीटा निकालना है. हमें पता क्या है अभी इसमें, ये देखते हैं हम. P पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स x, y होने का मतलब क्या है. इसको अगर मैं x एक्सिस पर प्रोजेक्ट करता हूं, लेट मी टेक द कलर लाइक दिस. इसको x पर और y पर अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस 90 डिग्री. ठीक है, तो यहां पर मुझे ये लेंथ कितनी मिलती है, x के बराबर, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट x दे रखा है हमें. और y में लेंथ कितनी मिल जाएगी, y के बराबर इस एक्सेस पर. अगर ये लेंथ y है तो क्या ये भी लेंथ y होगी, बिल्कुल होगी सर, बहुत अच्छी बात है. और ये एक परपेंडिकुलर है. क्या इस ट्राइंगल की बात कर सकते हैं हम. यहां पर लोग ये काम करते हैं, इनको कुछ नाम दे देते हैं, ग्रीन कलर से लिखते हैं, ए बी सी और ये ऑलरेडी पी पॉइंट है. हम कहते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी कॉमा tan ऑफ अल्फा किसके इक्वल आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड. marker as yellow one only. Okay, tan of alpha in triangle ABP is coming to be perpendicular, which is y, upon base, which is x. Similarly, in triangle, if we talk about BPBC, tan of beta comes out to be what, y, which is the perpendicular. क्या इस ट्राइंगल में हमें बेस के बारे में भी कोई नॉलेज है, बिल्कुल है सर. ये पूरा लेंथ किसके इक्वल है, आर रेंज के इक्वल. तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, BC r माइनस एक्स के इक्वल. दिस इज x, दिस इज r, सो इट विल बी r माइनस एक्स. तो tan बीटा की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, परपेंडिकुलर y अपॉन r माइनस एक्स, विच इज द बेस फॉर दिस ट्राइंगल. ठीक है, ये दो वैल्यूज मैंने अपने पास रख ली है. अब मुझसे बोल रहा है tan अल्फा प्लस tan बीटा को tan थीटा के इक्वल करना है. tan थीटा की बात करते हैं. क्या हमें y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के टर्म्स में, रेंज के टर्म्स में भी पता है. देखिए यहां पर मुझे रेंज का टर्म मिल रहा है, राइट. तो सिमिलरली कैन आई राइट दिस एज y इज इक्वल्स टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर. क्या यहां से मैं tan थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल सर. tan थीटा मुझे यहां से क्या मिलेगा, y अपॉन एक्स, और ये वाला टर्म ऊपर जाएगा r, एलसीएम ले लिया हमने, और नीचे बचेगा r माइनस एक्स. इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 2 और इनको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1. ऑलराइट, तो अब हमें कुछ इस तरीके से सेटिंग करनी है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा को tan थीटा के इक्वल करना है. तो tan अल्फा प्लस tan बीटा करके देखते हैं क्या ये tan थीटा के इक्वल आता है.
ओके, tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा। tan ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या थी? y अपॉन एक्स, और tan ऑफ बीटा की वैल्यू क्या दिख रही है? y अपॉन, जस्ट अ सेकेंड, y अपॉन आर माइनस एक्स के इक्वल। ऑल राइट, इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लिया हमने, x इंटू आर माइनस एक्स इज द एलसीएम, x मल्टीप्लाइड बाय, so r minus x into y plus x into y. This gives us ry minus xy plus xy upon x into r minus x. This is the value of tan alpha plus tan beta. Is it getting converted in that form? y अपॉन x, ये यहां आ गया, इंटू r अपॉन r माइनस x. See, this is exactly what we got as the value of tan theta here, y upon x, r upon r minus x. So this can be written as tan of theta. देखिए, प्रूव कर दिया हमने। आपको जो है थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना है, बाकी काम आप इजीली करते रह जाएंगे, बस कंसेप्ट ही लेने हैं आपको। रेस्ट ऑल यू कैन डू इट वेरी इजीली। मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आती है आपको, इंग्लिश पर थोड़ी सी पकड़ बना के रखें, रेस्ट यू विल बी डूइंग वंडर्स। सॉरी, okay, maybe this has come here by mistake, so we will go ahead and mark this as the final answer. ओके, सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, प्रोजेक्टाइल पार्ट 1। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, एंड we will be discussing about inclined plane also. So, be well prepared and practice some questions based on the topic that we have discussed today. तो पढ़ाई करते रहें, और फिजिक्स को एक सब्जेक्ट के साथ साथ एक रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए चलेंगे, देन यू विल फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट, और वही सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर आपके सारे के सारे सवाल बनने लगे, व्हेन यू विल be in love with the subject, you can do anything for it. All right, so enjoy as well as study hard, you can surely do it. Come on.